How to score a good marks is a very common and general question in student. Getting a good score requires streamlined study process and strategies. So I will say only a one single line. There can be a shortcut but not without any hard work. So to score a good marks, first we have to initiate a proper schedule. This schedule can be divided in two types of forms. The one is by time and the one is by topics. सो गाइस बाय टाइम से क्या मतलब है? बाय टाइम से मतलब है कि आप एक दिन के अंदर कितने घंटे पढ़ेंगे। जैसे कि आप शेड्यूल करते हैं कि मैं एक दिन के अंदर 4 घंटे या 6 घंटे पढ़ूंगा। अब आपको भी 4 या 6 घंटे पढ़ने ही होंगे, चाहे उसके अंदर आप 5 टॉपिक्स कवर कर रहे हो, चाहे उसके अंदर आप एक यूनिट कवर कर रहे हो, चाहे उसके अंदर आप एक कंप्लीट सब्जेक्ट कवर कर रहे हो। आपको उस प्रॉपर टाइम शेड्यूल कंप्लीटली पढ़ना ही होगा। और एक होता है गाइस बाय टॉपिक्स। बाय टॉपिक्स के अंदर क्या होता है गाइस, टाइम की कोई पाबंदी नहीं होती। आपको एक पर्टिकुलर आपको एक टारगेट सेट करना होता है कि मैं एक टॉपिक आज पूरे दिन में करूँगा, या फिर ये एक यूनिट में जो है एक पूरे हफ्ते के अंदर करूँगा, ये फिर ये 5 टॉपिक आज मैं एक दिन के अंदर करूँगा। चाहे फिर वे आपके 5 घंटे में हो, 8 घंटे में हो या 1 घंटे में हो, वे बाय टॉपिक्स के अकॉर्डिंग आपका एक शेड्यूल तैयार होता है। जो सेकंड स्टेप होता है गाइस, वे होता है मार्कअप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड एरियाज। गाइस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और एरियाज को हम कैसे पता करें कि कौन से टॉपिक्स जो है इंपॉर्टेंट है या फिर कौन सा एरिया जो है इंपॉर्टेंट है? वे गाइस Identifying the important topics and questions is the most important aspect from the exam point of view to secure high marks. And this became a very common questions from student side which is asked frequently to the teachers, and I am going to tell you the core of important questions. Further on, you need not to ask important questions from anyone. You can identify them on your own. So let's start. First, understand your course material. Look out your whole syllabus for a understanding. Second point, identifying topics and questions which are related to day-to-day life. As I am a student of law background, I am telling you some day-to-day questions related to law, such as how to form contract, essentials of contract, dowry, marriages, indemnity, RTI, PIL, etc. So guys, the third point is look out if there is any trending topics questions. As I am a student of law background, I am again telling you some trending questions relating to law, such as jurisdiction over rights of LGBTQ plus and martial rape, law over AI, should WhatsApp text consider as an evidence or not, POSCO, juvenile justice, etc. So now guys, let's talk about the fourth point. Make sure to cover teacher's favorite topic, which means the assignments which teacher asked from the students or the questions which are given in the unit test or sessional tests are the teacher's favorite topics. As teachers are the one who creates the test, so there is a very much probability of asking those particular questions which your teachers asked you previously. So our fifth and the most important point is previous year questions, in which you can look out 5 year, 6 year or 10 year previous year questions and identify the important topics which are asked frequently by the examinations point of view every year. So आई होप गाइज यू सो थर्ड पॉइंट है गाइज मेक नोट्स। गाइज आपको अपने खुद के हैंडमेड जो है ना नोट्स वे बनाने होंगे। और आपको नोट्स कैसे बनाने हैं, आपको ट्राई करना है नोट्स को पॉइंटर फॉर्म में बनाने के, जैसे फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट। और आपको पॉइंट्स को भी ब्रेक डाउन करके पॉइंट्स बनाने, जैसे कि सब पॉइंट्स। और साथ में जो आप नोट्स बनाओगे उसमें आपको कोशिश करनी है कि एक पैराग्राफ ना बना के, बल्कि एक पिक्टोरियल टेबुलर फॉर्म में जो है ना आपको नोट्स बनाने हैं, बहुत ही सिंपल और इजी लैंग्वेज के अंदर। कोई भी नोट्स टेक्सचर फॉर्म के बजाय एक पिक्टोरियल फॉर्म में होने चाहिए। फोर्थ पॉइंट है गाइस, टीच द लेसन टू समवन एल्स। आपको जो आपने पढ़ा है, आपको जो गेन हुआ है, आपको वही चीज़ें किसी और को पढ़ानी होंगी। एंड द गाइस फिफ्थ पॉइंट इज
टेक सेल्फ एग्ज़ाम, आपको अपना खुद का एक एग्ज़ाम लेना है। उस एग्ज़ाम को लेने के बाद आपको एक पेपर पे वे जो आंसर आप लिखोगे, आपको बाद में उसको सेल्फ एग्जामिन करना है। आपको जो आपकी गलतियां हैं उसको एक डिफरेंट कलर के पेन से नोट डाउन करना है और वापस उसको रीसोल्व करना है। और जब आप करोगे तो सेम प्रोसेस आपको जब तक इनिशिएट करना है जब तक आपके सभी मिस्टेक्स जो हैं वे सॉल्व ना हो जाए या फिर कोई भी एरर या कटिंग ना आए। और गाइस अब हम बात कर लेते हैं हमारे 6th पॉइंट की, जो कि है आपको टाइम टू टाइम रिवीजन करते रहना है ताकि आप उस चीज़ को भूलें ना। और लास्ट एंड फाइनल स्टेप जो है गाइस वे है 7th स्टेप। आपको ये मेक श्योर करना है कि आपने सब कुछ पढ़ तो लिया, अब आपको उसको रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। तो आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए कि आपका आंसर आपको किसी भी क्वेश्चन पेपर में कैसे रिप्रेजेंट करना है, उनको दिखाना कैसे। क्योंकि कई बार क्या प्रॉब्लम होती है, आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं अपना शेड्यूल, अपना टॉपिक, अपना एरिया, बट आपको आंसर में कैसे लिखना है वे नहीं आता है। इसके कारण जो आपसे कम जिसके पास नॉलेज गेन होती है वे आपसे ज़्यादा नंबर ले जाता है जस्ट बिकॉज उसको आंसर रिप्रेजेंटिंग आती है। तो गाइज आपको आंसर रिप्रेजेंटिंग भी बहुत अच्छे से आनी चाहिए। एंड इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आंसर राइटिंग। तो दोस्तों हमारे साथ ये काफ़ी बार होता है, हम और हमारे दोस्त बैठ के साथ में सेम सोर्स ऑफ नोट्स से पढ़ाई करते हैं और फिर सेम लेवल का याद होने के बावजूद भी हमारा कोई दोस्त हमसे ज़्यादा नंबर ले जाता है। इसके पीछे का आंसर क्या है गाइस? इसके पीछे एक ही आंसर है कि आपके दोस्त की आंसर रिप्रेजेंटेशन आपसे कई गुना बेहतर है। तो गाइज आज हम इस वीडियो में इसी चीज़ के ऊपर बात करने वाले हैं कि हम हमारी आंसर राइटिंग को और भी ज़्यादा बेहतरीन कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले गाइज ऑलवेज राइट डाउन द टाइटल्स। अब टाइटल से क्या मतलब है? टाइटल्स आपको हमेशा अपने आंसर में लिखने चाहिए, जैसे कि इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री, बैकग्राउंड, ओरिजिन, नेचर, इसेंशियल्स, मीनिंग, डेफिनेशंस, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सो ऑन। एंड द सेकंड पॉइंट इज गाइज हाईलाइट द इम्पोर्टेंट एरियाज। इंपॉर्टेंट एरियाज को आप डिफरेंट कलर ऑफ पेन से लिख सकते हो या फिर किसी पेन से अंडरलाइन कर सकते हो गाइज। उससे टीचर का ध्यान डायरेक्ट इंपॉर्टेंट एरियाज पे जाता है और वे उसके बेसिस पे आपको बहुत अच्छे नंबर दे देते हैं। अंदर आपने अगर कोई मिस्टेक की होती है तो वे हाई डाउन हो जाती है। देन द थर्ड पॉइंट इज गाइज ट्राई टू राइट आंसर इन पॉइंट्स। गाइज जब आप आंसर को पॉइंट्स में लिखते हो तो आप एक ज़्यादा जो है ना शीट को कवर कर पाते हो और साथ में जो पैराग्राफ्स होते हैं उसमें अच्छे से आप हाईलाइट नहीं कर सकते चीज़ों को। पॉइंट्स फॉर्म में जब आप अच्छे से लिखते हो तो हर एक पॉइंट का अपने अच्छे से वेरिएंट दिखता है टीचर को। देन द फोर्थ पॉइंट इज नीट एंड क्लीन। अब मुझे नहीं लगता नीट एंड क्लीन में मुझे ऐसा कुछ डिटेल देनी पड़ेगी, आप सब लोग इतने कैपेबल हो कि आप समझ जाओ नीट एंड क्लीन का क्या मतलब है यहाँ पे। द फिफ्थ पॉइंट इज गुड हैंड राइटिंग, सेम। एंड द सिक्स्थ पॉइंट इज यूजेज ऑफ पावरफुल वोकैब। आपको एक पावरफुल वोकैब जो है ना आपके आंसर के अंदर आपको प्रेजेंट करनी है कि टीचर को लगे हाँ कि इसको सिर्फ जो ना एक बुकिश जो लैंग्वेज या फिर बुकिश जो चीज़ें हैं वही इसको नहीं पता है कि इसके पास पावरफुल वोकैब भी है। देन द सेवंथ पॉइंट इज गाइस यूजेज ऑफ पावरफुल कोट्स बाय इमिनेंट पर्सनैलिटीज सच एज सर विलियम्स ब्लैकस्टोन, HLA हार्ट, जेरमी बेंथम, BR अम्बेडकर, महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी एंड सो ऑन। एंड द एट पॉइंट इज गाइज ट्राई टू मेक ए डायग्राम और एनीथिंग इन टेबुलर फॉर्म। गाइज उससे जो रिप्रेजेंटेशन है वे बहुत ही अच्छे से समझ में आती है इसलिए। एंड द नाइन्थ पॉइंट इज गाइज टेल एनी यूनिक फैक्ट अबाउट दैट टॉपिक। आप कोई भी एक यूनिक फैक्ट बता सकते हो, जैसे कि हाउ टू बिकम ए PM ऑफ इंडिया के अंदर, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के अंदर आप ये फैक्ट डाल सकते हो कि अभी तक हमारे भारत के अंदर 14 प्रधानमंत्री चुने जा चुके हैं, हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ये थे, करंट प्राइम मिनिस्टर ये हैं, सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट टेन्यूर ऑफ प्राइम मिनिस्टर इनका है। इससे एक यूनिक फैक्ट के बारे में पता चलता है और टीचर को पता चलता है कि इसको सिर्फ सिलेबस से रिलेटेड नहीं, सिलेबस के बारे में रिलेटेड नहीं, बट इसको सिलेबस से हट के भी उस टॉपिक से रिलेटेड चीज़ें पता है। देन द 10th पॉइंट इज गाइज ऑलवेज ट्राई टू गिव कंक्लूजन। हम आंसर बहुत अच्छा लिख देते हैं लेकिन कंक्लूजन नहीं लिखते काफ़ी बार। तो गाइज हमें कंक्लूजन को नहीं बोलना है, हमें कंक्लूजन को हमेशा आंसर के अंदर ऐड करना है गाइज।
And the 11th point is, guys, never forget to write answer number of a question, because guys, even though you have write the right answer in which you could get a full marks, but you wouldn't even get a single marks just because you forget to write the answer number or you write the wrong answer number of a question. So never forget about writing answer number of a question. सो गाइज यही थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें हमारे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू गाइज।